don't have plus points all the time, plus minus दोनों हैं. But let me first ask you your choice. Have you liked this life or no? Very much, sir. Very much. Yes, sir. Like. So these were the tough days as a cadet. I know you had to work a lot. No sleep. You must be looking for sleep. No? So different routines, different type of ships you have worked. So today ships have become fast, life has become little fast, technology is more advanced. तो सबके साथ तो बहुत अच्छा नहीं है, कोई कोई रोया भी होगा. नो, ऐसा तो नहीं हुआ. नहीं sir. चलो बच्चे, कोई बात नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. सो नाउ योर नेक्स्ट पार्ट इज द एग्जामिनेशन. एंड एग्जामिनेशन के लिए आई नो आपको पढ़ने का टाइम भी कम मिला होगा. Sir, all the time there was work only, but whatever little time you have utilized in completing your projects, writing things, वो थोड़ा आपके काम आएगा. So my name is Captain R.S. Raina. I will be taking your cargo and meteorology classes. Okay, and we will make it very interesting and you like this, and आपको एग्जाम पास करने के लिए भी मुश्किल ना हो. One thing I want to make it clear, the idea is to learn the job, because now you are in a profession. So once you know the job, once you know how these things are, how to do, exam is very simple. Exam में वही आपको पूछेंगे about your job. Cargo, we all know that you have been keeping watches. I think all of you have kept watches. Anybody who has not kept watches with second officer, third officer? चलो, सबने watches की हैं. And you have worked on different type of ships. Who all have worked on the tankers? अपना नाम और बोलिए tankers वाले. Alok sir. Okay, Alok has worked on which type of ships? Oil and chemical tankers, and second one is offshore. Okay, oil and chemical. Injection, sir. Okay. What's your name? Diksham. Kirat, sir. Kirat Singh. Okay. Dheeraj also has worked on tankers. Yes, sir. Kirat, K-I-R-A-T, Kirat. Okay, Dheeraj Nandi. Yes, sir. I have worked on tankers. Oil tankers. Yeah. Anybody Yes, else? Vishal sir. Good morning, Oil sir. tankers. Okay, Vishal Sharma. Vishal Khera sir. Vishal Khera. Okay, Yes sir. Oil tankers. this is your crude and product. Yes sir. Crew. Crude carriers. Okay. Sir, Anuj Rana, 2 crude oil tankers, 1 bulk carrier. Okay, Anuj Rana has worked on oil tankers and bulk carriers. Yes sir. Okay, very good. Shivam sir. Sir, Rakshit Chip. Sir, 2 oil tankers, 2 crude oil tankers, and 1 offshore tanker, or 1 offshore vessel. Okay, one offshore and crude oil. Akshay. Rakshit, sir. Yes, sir. Sir, Maheshwar Singh Guleria from crude oil tanker. Okay, Guleria from crude oil. Yes, sir. Shivam sir, product tanker. Shivam is done product. Sir, Mandeep, product tanker. Mandeep also from product. One product tanker. Okay. Sir, Abhay, product tanker. Abhay also product. Only product or some other ship also? Sir, 2 product and 1 bulk carrier. Okay, 2 product plus bulk carrier. Very good. Sir, Mandeep, I have also done bulk carrier. Okay, Mandeep ने भी bulk carrier भी किया है. Very good. Yes.
Sir, Raghuvar, product and chemical tanker. Raghuvar. Product and chemical tankers. Okay, product plus chemical. Right, sir. Sir, Aryan, 1 crude oil and 1 product tanker. What's your name, Ajay? Aryan, sir, Aryan. Aryan, okay, Aryan, also product plus 1 crude. Okay, product plus crude. Dipesh, product plus bulk carrier. Okay, bulk carrier में क्या नाम बताया आपने? Sir, और have a VLOC, sir. Okay, VLOC, bulk. Anshu Mehelwal, sir. Crude oil tankers. Okay, Anshul. Anshul. Sanshu, sir. Sanshu. 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 Okay, Salshu. Anji, sir. Crude oil tankers, sir. Okay, crude. Yeah. So most of you, I could see that at least. Sir, Mohammed Kaif, chemical tankers. Okay, Mohammed Kaif. Okay. Also tankers. Sir, Shubham Singh, 2 product tankers and 1 crude oil tanker and 1 bitumen carrier. आपने तो और variety of tankers कर लिया, very good. Sir, Abhishek Khanna, product carrier, sir. Product tanker. Okay, Abhishek. Product tanker, sir. Also product. Yes, sir. उपेंद्र त्रिवेदी, आपने कौन से शिप किए? Good morning, sir. Good morning. I have done 2 type of vessels, sir. First one is crude oil tanker and the second one is general cargo vessel, sir. Okay, very good. Crude भी किया और general cargo भी किया. चलो, good experience. Sir, 6 months in the crude oil tanker, sir, Aframax vessel, and then rest of the month is on the cargo vessel. 2 vessels I have done, sir. One is VLOC vessel, and the second one is the length was 260 meters. Cargo vessel. Okay, very good. चलो और कौन रह गया अभी? Okay, these are the people who have done tankers. So other, I assume they have done bulk carriers and general cargo and containers. Containers वाले कौन है? Sir, Manish, 2 container vessels. कोई बात नहीं. So rest of you, I assume that जिन्होंने tanker नहीं किए, so they may have done bulk or general cargo or containers, isn't it? So there's a good mixture. So you have done bulk plus tankers. So the guys who got experience of 2 or 3 ships, more better. But otherwise, आज के time में you are on one type of ships, so you keep on going on chemical tankers, you keep on going on chemical. But ये एक चीज याद रखना, आपका जो exam है, that is for the all type of ships, isn't it? So I hope first of all you are all comfortable. Now this is a different way of learning. Previously we used to have classroom teaching. Now you may be facing a different thing, and from the comfort of your home, isn't it? So this is a plus point. But from day one, I suggest you, okay, you are from the comfort of your home. Please set up your shop, your laptop, desktop, whichever computer you are using, and your whatever that networking system you have, broadband, उसको set up कर लीजिए जितना जल्दी, so that you don't face any problem with the net. So most of you must be located within the north area, close to Delhi. There should not be any net problem. And you know the timetable comes to you, you know the classes, when they are going to start, you must have had enough briefing. So whereas the subjects which I am going to deal is your cargo work,
and your metrology. So cargo work is, of course, you know, the ship basically is built for transportation of cargo, isn't it? Whether it's a crude, whether it's product, whether it is general cargo, containers, so all type of ships are there. And this is our main aim. Now your happy days are over. अब आपको एक तो पढ़ना है, समझना है, and your next posting back on the ship will be a responsible officer, that you have to know the stuff, you have to plan for yourself. अब तक तो somebody else was planning, somebody else was giving you the work, and उसके बाद आपको कोई और मॉनिटर कर रहा था. अब आपको खुद ही अपना काम प्लान करना है, खुद ही मॉनिटर करना है, खुद ही बताना है कि एवरीथिंग इज अपडेटेड एंड नथिंग डिफिकल्ट. आपने हर चीज़ की थ्योरी भी पढ़ी है प्री सी में, प्लस प्रैक्टिकल भी आपने देखा है, वॉचेस कैसे होती हैं, ऑल द थिंग्स यू हैव डन. सो हियर वी विल गो इनटू द थ्योरी, क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे हमने करना है. ओके, सो all of you, which I could see 24, 25 of you are with us, and we expect that these 4 months are utilized in the very right way. Initially, maybe few days you may take to settle down, keep your books out, prepare yourself so that there is no time wasted. So whatever we study, साथ साथ आपने पढ़ना है. Please don't leave it कि अभी तो मैं शिप से आया हूँ, अभी तो आराम करना है. Then you find lot of pressure coming, all the subjects coming together, and फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. Make your time table, कैसे आपने पढ़ना है, कितना टाइम देना है, थोड़ा सा. Yes, you have to do everything. फ्रेंड्स को भी मिलना है, रिलेटिव्स को भी मिलना है, सो घर के काम भी हैं, बट यू प्लीज़ मेक इट क्लियर टू योर होम पीपल कि भाई अब मेरा एग्ज़ाम है. दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपके कैरियर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? Yeah, I see Anuj has raised hand. Anuj, anything you want to ask? And Shubham? थैंक यू सर, थैंक यू. कल पहले से वो होता. या चलो ठीक है. तो ये हमारा रूटीन रहेगा, आपके पास टाइम टेबल है, सब कुछ है, एंड वी विल स्टार्ट विद कार्गो. एंड देन हमारे इस वीक आई एम विद यू फॉर 2 सेशंस, वन इज मंडे एंड वन इज ऑन थर्सडे. एंड नेक्स्ट वीक से जैसे जैसे टाइम टेबल आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको, एंड नॉर्मली आई विल डिस्कस कि आज हमने क्या करना है, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे. सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, नॉट दैट यू कम हियर एंड get surprised यार ये क्या हो गया. Okay, so any time, I hope language all of you understand English and Hindi. Yes sir, I'm comfortable with both. Yes sir. Yeah, so जहाँ पे भी अगर आपको किसी स्टेज पे if you feel you have not understood anything, कहीं पे भी कुछ डाउट आता है, वर्ड्स में डाउट आता है, पर्टिकुलर वर्ड समझ नहीं आता, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ स्टॉप मी, सर ये समझ नहीं आया. So one thing I make it clear to you that you have come here to learn. आपकी तरफ से मेरे को cooperation चाहिए, that you pay full attention even in the class. आपका 50% तो क्लास में पढ़ने से, सुनने से ही काम हो जाता है. Okay? So in case any time at any stage you feel नहीं सर बहुत हो गया, you are feeling not, it's not going into the mind, please stop me कि सर बहुत ज़्यादा हो गया. There's no point. We don't want to waste time. Time is most important. जब पढ़ने बैठे तो seriously पढ़ेंगे, otherwise नहीं पढ़ेंगे. Okay? तो ये चीज़ आपने अपनी देख लेनी है. Be fresh whenever you are in the class, and जो भी आपको डाउट आता है, किसी स्टेज पे भी कुछ समझ नहीं आता, you are open to any interaction and we are there to help you out. So this is the idea of coming here, spending 4 months and then going for the exam. Pass hona is not difficult. We want you to get the good marks. All India level pe we want to see you coming in the good, good standing. और उसके लिए sincere effort, hard work चाहिए.
बाकी कुछ नहीं चाहिए। चलो, आई स्टार्ट विद द कार्गो टुडे। सो लेट्स सी। सबसे पहले आई विल शेयर विद यू दैट आपका जो एमएमडी का एग्जामिनेशन पैटर्न है, कि आपका जो पेपर है, ये कार्गो पेपर आना है, इसका पैटर्न क्या है। तो यू शुड नो, फर्स्ट थिंग इज यार, तो मेरा पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो किस पैटर्न पे है, क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, कितने मार्क्स का है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट पेपर। सो आपको सबसे पहले तो टॉपिक्स पता होने चाहिए। नाउ लेट्स सी। नाउ आपका जो पेपर फॉर्मेट है, that is basically there are 10 questions in the paper and we have to answer 8 questions. So आपके पास 2 questions की choice है. I hope you can, all of you can hear me loud and clear and you can see the slides clearly on your laptops. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hello, good. So we have to note it down, or you will still share these slides with us. Yeah, in case you want, whatever you want me to share, I will share with you. Okay, I'll share this. I'll send you the paper format on your emails. जैसे मेरे पास आपकी emails आएंगी, I will be sending you on the emails. I'll share this paper format also, and I will share whatever we do in the class also, जो भी आपको चाहिए. Okay? Okay, sir. Thank you. But साथ साथ in case you want to note down, very good. कुछ भी आपको नोट डाउन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप कुछ लिख रहे हो, यू कैन स्टॉप मी कि सर 2 मिनट मेरे को लिखना है। अपने भी अगर आप नोट्स कुछ लिखना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अ गुड हैबिट, क्योंकि स्लाइड्स तो ऐसा है कि देखते जाओगे तो सब कुछ लगता है आ गया, एंड जैसे ही स्लाइड बंद हुई तो सब कुछ, एवरीथिंग वैनिशेस फ्रॉम द माइंड ऑल्सो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलो, ऑल राइट। सो आपका जो क्वेश्चन पेपर, first we have 10 questions and we have to attempt 8. Out of 10 we have to attempt 8, जिसमें question 1 and 2 are compulsory. Now 1 and 2 questions are basically numericals. So ये 1 and 2 questions क्या है, and all questions carry equal marks. आपका ये जो पेपर है, it is for 200 marks. Passing marks are 60%, 120. Each question is 25 marks. So 25 marks each question, 8 questions you have to do. That makes 200 marks and passing marks are 120, 60%. So 120 से ऊपर आपके marks आने चाहिए, 130, 40, and you should aim for always that you should know everything. It's a professional exam. I should know everything and nothing difficult. So question 1 आपका is first is cargo calculations for tankers, कि वहाँ पे tankers पे cargo calculation कैसे होती है. These are the numerical. We will be studying this, we will be doing this, we will be practicing these numericals here. Second is also a numerical, tackle calculation, stowage factor, broken stowage, load density, general cargo ships pe, that it's basically the relation between your space and tonnage, that how much space is there, how to calculate how much space required for particular cargo, and if you have the volume of your holds, किसी का भी है, चाहे वो टैंकर है, बल्क कैरियर है, जनरल कार्गो है. नाउ यू नो द कार्गो होल्ड्स आर देयर, एंड इफ यू नो हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ दैट कार्गो होल्ड by simply length, breadth and height, and if you know stowage factor, you should be able to calculate how much cargo I can fit into this hold. Or if the cargo is offered to you 1000 ton, 2000 ton, 10,000 ton, you should be able to calculate how much space is required. So this question is, question number 2 is about that. And इसी के साथ there are basically another part, another topic of tackle calculation. Tackle means purchase and tackle, कि आपके जो blocks होते हैं, isn't it, wooden blocks हैं, steel blocks are there, so combination of blocks, what we call purchase and tackle, to calculate the size of wire if you have to lift something. So these type of calculations, either tackle calculations और stowage, इनमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा, एक न्यूमेरिकल और एक आपका क्वेश्चन 1 इज टैंकर न्यूमेरिकल, वॉल्यूम, वेट, pallage, and question number 3. Now these two questions are compulsory, 1 and 2. So हमने जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको एम करेंगे
कि हमारे न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आए, समझ के करना है और उसको ठीक करना है। तो 25 + 25 50 मार्क्स आपके यहीं पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन ऑन द क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आपने जो क्रूड ऑयल किया है या प्रोडक्ट ऑयल किया है उसका टैंकर्स क्या होती है, टैंकर थ्योरी, क्रूड ऑयल वॉशिंग, इनर्ट गैस सिस्टम, हैजर्ड्स ऑफ पेट्रोलियम। तो ये सारे आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज बेसिकली टैंकर थ्योरी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 is your chemicals and gas cargos. So few of you have done chemical tankers also. Never mind, जिन्होंने नहीं भी किए, we will study here, पढ़ेंगे उसको, not so difficult कि chemical cargos क्या हैं and gas tankers उनका cargos क्या है, क्या क्या टाइप के ships होते हैं। Question number 5 is again on your IMDG code. IMDG is dangerous cargos, including IMDG containers. So IMDG is International Maritime Dangerous Goods Code. जब आप dangerous cargo, few of you may have carried, जिन्होंने containers पे काम किया है, so you must have carried dangerous cargos. So उनके लिए special provisions are there कि when we carry dangerous cargo, then what all precautions we have to do. उनके साथ क्या क्या problems हो सकती हैं, उनको कैसे आपने carry करना है। So उसके ऊपर भी एक question रहेगा, question 5. तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे इन टॉपिक्स पे। क्वेश्चन 6 इज अगेन ऑन बल्क कार्गोस, ग्रेन कार्गोस। तो बल्क कार्गो में जिन्होंने बल्क कैरियर पे किया है कि बल्क कैरियर क्या होता है एंड बल्क कार्गोस क्या है। एग्जांपल, इंडिया आल्सो इंपोर्ट्स लॉट ऑफ बल्क ग्रेन, नॉट ग्रेन, कार्गो, कोल, आयरन ओर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इजंट इट। तो वो बल्क कार्गो के लिए उसको भी पढ़ेंगे। तो उसमें से भी एक क्वेश्चन है ग्रेन लोडिंग, यार उसकी क्या क्या प्रिकॉशन होती हैं। सो दिस इज बेसिकली द बल्क कैरियर टॉपिक कि बल्क कैरियर्स के साथ क्या क्या हैजर्ड्स, क्या क्या प्रिकॉशंस एंड कैसे कैसे उसको हमने काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन कोड फॉर सेफ प्रैक्टिसेस टिम्बर एंड बल्क कार्गो का आया आपका IMSBC कोड, BLU सिक्योरिंग। तो ये टिम्बर कार्गो, आई डोंट थिंक एनीबडी कैरिड टिम्बर कार्गो। किसी ने टिम्बर कैरियर पे काम किया? नोबडी, ओके। एंड देन कंटेनर्स, रोरो टाइप ऑफ शिप्स। कंटेनर्स पे तो किया होगा, few of you must have worked on container ships. Anybody who has worked on container ships? जी सर, किया कंटेनर। Okay. Only one or anybody else? Container वाले? Who all are there who have worked on containers? Just your name. सर मनीष। Okay, Manish has worked on containers. Anybody else? Only one, is it? चलो 8 क्वेश्चन आपका कंटेनर्स पे आता है। 1 क्वेश्चन ऑन रेफ्रिजरेटेड जनरल कार्गो, डेक कार्गो, हैवी लिफ्ट्स। If you are loading heavy lifts, if you are carrying reefer cargos, now reefer cargos today we carry on the reefer containers also, and we carry, आजकल वो ships कम है, refrigerated, the full ship is refrigerated, so we used to call this reefer ships. And deck cargo, what all precautions, general cargo, heavy lift loading के टाइम में क्या क्या precaution as a duty officer you will take, ये सारा स्टडी करेंगे। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन। And then 10th question is damage to cargo spaces, inspection, reporting, cargo gear inspection. एक क्वेश्चन इस पे है कि यस, अगर आपकी if you have the damage in the cargo spaces, क्योंकि शिप तो काम करता है, stevedores are working, outside people are working, sometimes they do not handle the cargo properly, sometimes they do not handle your cranes properly, the damage takes place. Either the cargo gets damaged or the ship structure gets damaged. तो उसको आपने कैसे इंस्पेक्ट करना है, कैसे उसकी रिपोर्टिंग है। एंड देन कम्स योर कार्गो गियर इंस्पेक्शन कि कार्गो गियर भी है शिप्स, द पीपल हु हैव वर्कड ऑन द क्रेन्स, आजकल एवरी शिप हैज गॉट, इवन टैंकर्स हैव गॉट क्रेन्स,
तो क्रेन्स के ऊपर जब काम करना है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो व्हाट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर टेस्टिंग इंस्पेक्शन। अब मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ तो आई शुड नो यार कार्गो गियर में क्या क्या चेक करना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इजंट इट। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए यार, हाउ आई एम गोइंग टू चेक दैट। दिस इज बेसिकली योर 10 questions. So इसमें the examiner tries to cover up all the topics by making part A, part B in the questions. So ये सारी चीज़ें we will be studying, carrying out and accomplish this so that अब हमारा शुरू होता है कि चलो let's start with कि अगर हमने कार्गो शुरू करना है तो हमारा एम एम्बिशन क्या है। Now you are a duty officer. When you are duty officer on the ship, जब आप वॉच पे हो, कार्गो वॉच पे हो, तो मेरा एम एम्बिशन क्या है। सबसे मेन थिंग कि जो कार्गो मैं लोड कर रहा हूँ, आई शुड डिस्चार्ज द कार्गो इन द सेम कंडीशन द कंडीशन इट वाज लोडेड इन, इजंट इट। आपके मन में क्या आता है, एनीथिंग एल्स विच कम्स टू योर माइंड व्हेन यू आर कीपिंग अ कार्गो वॉच। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माय ओपिनियन इज कि जो कार्गो हम लोड कर रहे हैं, it should be loaded in such a condition that I can discharge in the same condition. Now when preparing vessel for loading, it is important. So today's topic is basically we have to prepare the ship before we come to the load port. You must have seen whether it's tanker, whether it's bulk carrier, whether it's a container ship, everything is planned before, isn't it? We cannot come to the what you call this alongside loading terminal and then we start preparing the ship, then there is a delay and everything, the time is money. So the officers and the entire complement of the ship is basically to prepare the ship when before she comes to the loading terminal, चाहे वो जनरल हो चाहे कुछ भी हो। एंड उसके लिए हमारी टेंडेंसी क्या है, व्हेन प्रिपेयरिंग वेसल फॉर लोडिंग इट इज इंपॉर्टेंट द शिप इज लोडेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू इट्स मैक्सिमम डेड वेट और कैपेसिटी। अब तक तो आपको था कि कुछ भी हुआ, एनीथिंग हैपेंड, यू कॉल चीफ ऑफिसर, यू आस्क चीफ ऑफिसर। तो अब ये है यार मेरे को भी कार्गो की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं कार्गो वॉच कर रहा हूँ, इफ आई एम लोडिंग डिस्चार्जिंग इज गोइंग ऑन, so I should also know here whether this is right or wrong, isn't it? Now to ensure the quality of cargo is not affected while it is in the vessel's custody and reach its destination in the same condition as when it was loaded. So this is basically my aim ambition as a duty officer. So अगर आप इतना कर सकते हो तो उसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए यार, कार्गो के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मेरे को पता होना चाहिए। Now quality of cargo can be affected due to contamination, inadequate ventilation, staining, moisture, कहीं इन चीज़ों से many more things जो आपकी कार्गो को इफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर if I know this, then I will definitely take care and cargo will be in the good condition. Now सबसे पहले मैं आपको ये पूछता हूँ कि यस आपको क्या क्या appropriate information relevant to cargo stowage securing should specify particularly the precautions. So आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं एक जनरल कार्गो लोड करना है या कंटेनर्स, आई एम लीविंग द टैंकर्स असाइड, तो दूसरे शिप्स में अगर मैंने कार्गो लोड करना है तो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। एनीबॉडी? Cargo specification, quality of, or what precaution we need to carry out during this loading discharging. Okay. Okay. और कुछ? Total quantity and density of cargo. Sir, shipper's declaration. Okay. So grade of cargo. Nature of cargo. Sir, physical and chemical property of the cargo. Correct. Very right. देखिए सेम थिंग है कि अगर मेरे को, या बोलिए। Hazards of cargo sir, MSDS आता है कार्गो का जैसे पहले लोडिंग से पहले, या ओके, तो hazards पता होने बहुत जरूरी है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, isn't it? So before I start loading, before I start doing anything, चाहे मैं कार्गो वॉच पे चाहे मैं ड्यूटी ऑफिसर ही, ओके,
तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चीफ ऑफिसर लेवल की। अगर मैं ड्यूटी ऑफिसर भी हूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए कि अगर मेरे को उसके हैजर्ड ही नहीं पता। Now I give you an example. If somebody or if I tell you carry this suitcase from place A to place B, example from say Chandigarh to Delhi, तो आपके मन में भी आएगा सबसे पहले कि सर इसके अंदर है क्या, isn't it? अगर मैं कहता हूँ इसके अंदर यार गंदे बॉयलर सूट हैं, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो तो क्या करोगे, आप भी एक सूटकेस को साइड पे रख के सो जाओगे, yes or no? And now if I say यार सूटकेस के अंदर 10 लाख रुपया है, will you throw the suitcase and go to sleep? नहीं सोओगे ना। एंड थर्ड सिचुएशन में मैं कहता हूँ इसके अंदर 10 बॉटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करोगे आप, उसको अच्छी तरह से पकड़ के रखोगे, मेक श्योर देयर इज नो जर्क, नो कहीं ये गिरे ना, क्योंकि इसके अंदर एसिड है। नाउ यू सी सूटकेस वही है, बस भी वही है, आपकी प्रिकॉशंस कैसे चेंज हो रही हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्गो। अगर मेरे को पता ही नहीं है कि यार इसके साथ क्या हो सकता है, देन आई विल ऑल्सो विल नॉट टेक केयर। अल्टीमेटली आपका एसिड वाटर्स टूट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सेम थिंग हैपन्स ऑन द शिप। ये जो कार्गो की जो रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं, चाहे आपको MSDA शीट्स के थ्रू मिले, चाहे किसी तरह से मिले, तो जो शिपर है, शिपर कौन होता है, जो कार्गो लोड करता है, जिसका कार्गो है, जो कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता है, वी कॉल हिम अ शिपर। एंड उसको जो रिसीव करता है उसे कहते हैं कंसाइनी। अब आपने अमृतसर से राइस भेजने हैं तो यू आर द शिपर ऑफ द राइस, एंड मनदीप ने उसको LA में रिसीव करना है, लॉस एंजलिस, सो ही बिकम्स द कंसाइनी ऑफ द कार्गो। ये जो है कि ये हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो बेसिकली द इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द शिपर in case of general cargo, the cargo carried in cargo units, general description of cargo, gross weight of cargo, मेरे को weight तो पता होना चाहिए, तब only मैं I can calculate the space, drafts, stresses, lot of calculation chief officer has to do। उसके लिए उसको how much weight he knows, how much cargo he can take। ऐसा तो है नहीं कि unlimited quantity, ship has got a limited space and any relevant properties of the cargo। In case of bulk cargos, information on stowage factor of cargo, trimming procedures, likelihood of shifting including angle of repose and any other special properties, वो सारी मेरे को पता होना चाहिए। So bulk carriers में in case of concentrate, something we call transportable moisture limit, which we will be studying, ये क्या होता है, and information on the what rightly you said, the physical and chemical properties of the cargo which can create a potential hazard। So this is also important। इतनी अगर आपके पास information है, then good। Now using this information provided by the shipper, we should ensure, the master will ensure that the different commodities to be carried are compatible to each other or suitably separated। शेर और बकरी को तो एक साथ नहीं हम डाल देंगे, तो खा जाएगा उसको। तो जो commodities हैं, अब उनको आपने लोड करना है। ऑफ कोर्स मैक्सिमम कार्गो इज गोइंग इन कंटेनर्स, बट वहाँ पे भी देखना है कि कौन सा कार्गो जो है। तो दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि फर्स्ट द कार्गो इज सूटेबल फॉर द शिप एंड सेकंड द शिप इज सूटेबल फॉर द कार्गो। The cargo can be suitably stored and secured on board the ship and transported under all expected conditions during the intended voyage। ये तो है नहीं कार्गो आपने लोड कर लिया and then you realize अरे ये तो था, ये तो अलाउड ही नहीं था, शिप इज नॉट सूटेबल फॉर दिस। तो ये सारी चीज़ें भी इवन एज अ ड्यूटी ऑफिसर आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ यार शिप इज डिजाइंड, क्या क्या कार्गो कैरी कर सकता है, स्पेशली फॉर द डेंजरस कार्गो में होता है, देयर आर डिफरेंट क्लासेस। सो ऑल द क्लासेस यू मे नॉट बी अलाउड टू कैरी। तो ये हमें पता होना चाहिए, नहीं लोड कर दिया एंड देन यू रियलाइज्ड अब क्या करें। तो सबसे पहले आपका आ जाता है इंस्पेक्शन एंड प्रेपरेशन। अब आपने अपने शिप को प्रिपेयर करना है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है भी ये कार्गो लोड करना है, आपने अपने कार्गो होल्ड्स को, एग्जांपल से जनरल कार्गो शिप है या बल्क कैरियर्स है,
तो हाउ विल यू प्रिपेयर और व्हाट ऑल थिंग्स आपके मन में आती हैं कि जो मैं प्रिपेयर करने के लिए कि सर ये करना है, ये करना है. मोस्ट ऑफ यू मे हैव डन इट ऑल्सो. करके आए हो. अभी तक तो आप चीवा सर आपको काम देता था, यू गो एंड वर्क. नाउ यू हैव वर्क विद योर हैंड्स. सो नाउ यू नो कि यार क्या क्या काम करना है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है, कहाँ पे कैसे मैंने चेक करना है. अभी तक तो आप कर रहे थे, अब आपको किसी और से करवाना है. यू हैव टू एंश्योर दैट द शिप इज रेडी फॉर लोडिंग. क्या क्या पॉइंट्स आपके मन में आते हैं कि अगर मैंने अपने कार्गो होल्ड्स को रेडी करना है. Anybody? For bulk carrier, sir. Yeah, anybody, any ship, bulk carrier, general cargo, same holds the holds in. Any remain residue of previous cargo, sir. First one we have to ensure. So that's why we have to clean the holds and all. Okay, so सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है आपका? होल्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए क्लीनिंग ऑफ द होल्ड्स, इज इट? Yes, sir. No residue should be remain in previous cargo. Okay. और कुछ? So we make sure that the bilges are clean and we make sure that the non-return valves of the bilges are working properly. Okay, very good, very good. Anything else? और क्या चेक करेंगे? देखो अभी आप लोडिंग करने आ रहे हो. Yes, sir. We check for any structural damages inside the hold or anything else like that. Okay, very good. Anything else? Sir, after the tank cleaning, we will. हाँ, टैंकर्स को हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा. टैंकर्स को छोड़ के से दूसरा शिप में हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो कार्गो होल्ड्स को प्रिपेयर करना है, तो क्या क्या करेंगे? सर हैच कवर्स, रबर पैकिंग शुड बी चेक्ड. ओके, हैच कवर जो है वो भी वेदर टाइट होने चाहिए. कार्गो होल्ड्स के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए. ओके. Sir, we'll check for any loose paints or loose flaking of the paint for bulk cargo loading. Yeah, that is वो आपका आ गया क्लीनिंग में आ गया. ठीक है, that is what we call कि ठीक है होल्ड क्लीनिंग जो है एक इशू आ गया कि भाई एक होल्ड क्लीनिंग जो उसको हमने करना है उसका स्टैंडर्ड वेरी करेगा. कौन सा कार्गो करना है, ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, कम करनी है. एनीथिंग एल्स? Sir, there should be no leakage from the DB manholes. Okay, very good. लीकेज भी चेक होनी चाहिए. Ventilation of cargo. The cargo requires ventilation or not? आपकी बैकग्राउंड नॉइस सारी. चलो अभी देखो आपके मन में पॉइंट्स हैं, बट वो सारे के सारे एक सिस्टम में नहीं है ना. वह भी आपने कल सर्वेयर के सामने बैठना है, एग्जामिनर के सामने बैठना है, या आपको रिटर्न पेपर आता है, आपने आंसर लिखना है, तो देयर शुड बी सम सीक्वेंस, इजंट इट? कि जो हम काम शिप पे करेंगे कुछ एक सिस्टम से करेंगे, ताकि एग्जामिनर जो है जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो उसको भी लगे कि हाँ यार दिस स्टेप वाइज नाउ दिस गाय नोज एंड ही हैज डन द वर्क. तो उसको बेसिकली आपके पेपर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि किया. अगर ये तो है नहीं कि हम एक बार ऊपर जाएं फिर नीचे जाएं, कोई जो काम हम करते हैं. सो लेट्स सी कि अगर ये जो आपने सारे काम देखे हैं कि यस आपको पता है कि ये भी करना है, ये भी देखना है, वो भी प्रिपेयर करना है, बट उसका थोड़ा सा एक सिस्टम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए. तो सबसे पहले तो है जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द होल्ड इज इम्पॉर्टेंट प्रायर टू लोडिंग टू चेक फॉर फॉलोइंग. फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चरल डैमेज. ये तो है नहीं होल्ड मैंने सब साफ कर दिया, या साफ करने के लिए किसी को भेजा, लैडर ही टूटी हुई थी एंड द गाइस फॉल डाउन. So this could include damage to your tank top, missing bilge covers, broken ladders, damaged cargo battens. So hold के अंदर कोई डैमेज है. वैसे तो ये डैमेज हम डिस्चार्जिंग कंप्लीट होगी तभी नोटिस कर लेंगे. जैसे ही कंप्लीट होती है, you must have seen duty officer या chief officer, they go down and they see there is no major damage. या छोटी भी डैमेज है, स्टीवडोर ने की है तो उनको बताना कि भैया इसको रिपेयर करो, आपने हमारे शिप को डैमेज किया. अदरवाइज प्रायर preparation, so we will see
देयर इज नो स्ट्रक्चरल डैमेज, अगर है तो उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा, तो पहले उसको रिपेयर करें, सब चीज़ ठीक ठाक करें, एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द सुटेबिलिटी फॉर द कार्गो. होल्ड मस्ट बी क्लीन टू अ स्टैंडर्ड सुटेबल फॉर द कार्गो. अब हमने कार्गो डिस्चार्ज कर दिया है, प्रीवियस कार्गो था, हो सकता है लॉट ऑफ डर्ट, लॉट ऑफ डिब्रीज, लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट बी इनसाइड द होल्ड, तो उसको हम साफ सफाई करेंगे, चाहे वो बल्क कैरियर है, चाहे जनरल कार्गो शिप है. कंटेनर्स में ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट मेकिंग मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज आपके होल्ड जो हैं ज़्यादा गंदे नहीं होते, बॉक्सेस लोड करते हो फिर भी थोड़ा बहुत कचरा आता है कंटेनर्स के साथ, सो व्हेन एवर वी गेट टाइम वी क्लीन इट. कंटेनर्स में अलग है, बिकॉज ऑल द टाइम देयर इज सम कार्गो. तो बल्क कैरियर में तो है कि ओके दे लोड, डिस्चार्ज एंड ballast strip, all the holds are empty, then you start preparing for the next cargo. तो जनरल कार्गो अगर मैंने लोड करना है, नॉट ओनली कंटेनर, जनरल कार्गो जैसे ब्रेक बल्क जिसे हम कहते हैं वो मैंने लोड करना है. डैशिंग पॉइंट्स, स्पेस, डायमेंशंस नीडेड फॉर द कार्गो टू बी चेक्ड, एनी ऑब्स्ट्रक्शंस टू स्टोरेज. अब मेरे को पता होना चाहिए कि ये तो है नहीं कि मैं ऑफिस में बैठ के तभी प्लान बना सकता हूँ कि यहाँ पे पाइप्स लोड करनी है, प्लेट्स लोड करनी है, बॉक्सेस लोड करने हैं, बेल्स लोड करनी है. कहाँ पे कार्गो नहीं लोड किया जा सकता, वो भी एरियाज मेरे को पता होने चाहिए. वेंटिलेटर डक्ट्स प्रेपरेशंस मस्ट बी कैरीड इन एडवांस. कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो बेसिकली वो पता होनी चाहिए. तो हमें क्लीनिंग, डैशिंग पॉइंट्स एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर, then I can do the, or say the chief officer will be able to do the planning. So this is normally done when the ship is en route trying to come for the loading. Now hold preparation, सबसे पहले और क्या, बाकी चीजें तो है नहीं, डेक वैक तो हमारी सब साफ रहती है, वी ऑल होज डाउन क्लीन, अकोमोडेशन नथिंग, ओनली कार्गो स्पेसिस जो हैं उन्हें हमें तैयार करना है. सो फर्स्ट पॉइंट इज द थॉरोली स्वेप्ट. ऑल योर कार्गो स्पेसिस आर थॉरोली स्वेप्ट एंड वॉश्ड डिपेंडिंग अपॉन द कार्गो टू बी लोडेड. So bulk carriers में very common, if you are loading grain, then I have to clean the hold very thoroughly. जैसे आपने point out किया कि there should not be any loose rust. क्यों? It's a food, it's a food grade. So उसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए. Loading coal, चलो थोड़ा सा कम हम उसकी sweeping तो करेंगे, हो सकता है washing की ना जरूरत. Second, bilge is thoroughly cleaned, washed. अब ये देखिए, आपने इतने ऑपरेशन करने, बट आपने एक ही पॉइंट में सारा लिख देना. ये नहीं कि हम एक ही बिल्जीज को 10 पॉइंट बनाते जाएं, फिर वो बड़ा बोरिंग लगता है. तो बिल्जीज थॉरोली क्लीन, वॉश्ड, सक्शंस ट्राइड आउट, रोज बॉक्सेस चेक्ड प्रायर एवरी लोडिंग. सो आपने बिल्जीज को कह दिया. नाउ टैंकर पीपल विल बी वंडरिंग ये बिल्जीज क्या होती है, isn't it? They may not have seen. टैंकर्स पे तो है नहीं. Otherwise bulk carrier, general cargo, container people, they all know what are the bilges. तो उसकी भी आपको पिक्चर दिखाएंगे how these bilges basically आपके कार्गो होल्ड के एंड में there are basically wells जहाँ पे पूरा का पूरा पानी या कुछ भी है वो चला जाता है, and there are pipelines जहाँ से आप सक्शन लेते हैं. चलो I'll show you that. Now bilges should be free from any traces of previous cargo and contain no water or foul odors. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेक्स्ट कार्गो आपने लोड करना है, अगर बिल्जीज में से गंदी स्मेल आ रही है तो हो सकता है आपको कार्गो भी खराब हो सकता है. यू आर कैरिंग टी, राइस, तो सब में वो स्मेल चली जाएगी. सो बिल्जीज टू बी कवर्ड विद बर्लैप टू अवॉइड एनी सक्शंस बीइंग चोक्ड. सो आपने बिल्जीज साफ करके, यू मस्ट हैव सीन, उसके ऊपर वो कवर होता है. बल्क कैरियर्स यू कवर दिस कवर विद अगेन एक पतला हेसियन क्लॉथ स्टार्ट जो होता है, और बर्लैप वी कॉल इट, ताकि ओनली वाटर कैन गो एंड कार्गो कैन नॉट एंटर द बिल्जीज. Vents to be tried out for satisfactory operation, isn't it? Ventilation भी हमने करनी है, वो भी हम पढ़ेंगे. So अब तक तो था नहीं, ये तो है नहीं कि when the ship is coming from one climate to another, कहीं बार from cold climate to the warm climates, so we need the ventilation. So ये भी नहीं है कि cargo load कर लिया and then we found the vents are not working. So they are also to be tried out. CO2 system, smoke detection system to be checked. I hope any of you have seen this, how the CO2 system is blown through. How many of you have seen that? CO2 system को कैसे चेक करते हैं? सर एयर से. ओके, कैसे किया था? सर CO2 रूम में जाकर वहां पर एयरलाइन से एयर पास कर देते हैं उसकी, मतलब CO2 वाला निकाल के. इंजीनियर्स डू असिस्ट इन दैट. ओके, ठीक है. सो आपने चलो थोड़ा सा देखा उस वक्त
जितना का आपको समझ आया, सो बेसिकली आपका जो CO2 सिस्टम है कि यू गॉट अ फिक्स CO2 सिस्टम, जिसकी आपकी CO2 बॉटल्स आपके CO2 रूम में होती है, वहां से फिक्स पाइपिंग जो है, फिक्स मतलब आपको लगानी नहीं है, फिक्स पाइपिंग जो है अलग अलग होल्ड्स में जाती है, एंड देन इन केस देयर इज अ फायर सो यू कैन रिलीज द CO2, इट विल गो टू दैट पर्टिकुलर होल्ड। अब ये पाइप जो है अगर हम इसको चेक नहीं करते, आप कार्गो लोड कर रहे हो, लॉट ऑफ डस्ट, लॉट ऑफ कचरा कम्स इनटू द होल्ड प्लस मॉइस्चर, तो अगर हम इसको चेक ना करें दिस पाइप कैन गेट चोक्ड and then you release CO2, pipe is choked, the gas cannot go into the hold. So इसके लिए every 3 months normally the companies also have a standing instruction that once in quarter या before loading, the best is before loading, that we try out this CO2 system. CO2 system को नहीं try out करते, only this pipeline जो है उसको compressed air से हम blow through कर देते, it's called blowing through of the CO2 lines. So वो भी system check होना चाहिए। तो उसके बाद तो कार्गो लोड हो गया, देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, फिर तो पहुंच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। स्पार सीलिंग कार्गो बैटन्स, आई विल शो यू कार्गो बैटन्स इज द बेसिकली द डनेज विच इज फिक्स्ड ऑन द साइड, ताकि कार्गो आपका शिप साइड को टच ना करे। सपोज आई एम लोडिंग बैग्स, बैग्ड कार्गो लोड कर रहे हो या कुछ और बॉक्सेस लोड कर रहे हो, सो दे शुड नॉट टच द शिप, शिप साइड को टच करेंगे तो स्वेटिंग होगी, कुछ भी होगा, कार्गो खराब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए वी कॉल बैटन्स। आई विल शो यू। हैच कवर्स टू बी इन गुड कंडीशन, चेक फॉर वेदर टाइटनेस, अंडर साइड ऑफ पॉन्टून्स फ्री फ्रॉम एनी रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस कार्गो। नॉर्मली हैच कवर के अंदर काफ़ी आपके बीम्स गर्डर्स होते हैं, उनके अंदर भी प्रीवियस कार्गो नहीं होना चाहिए। सपोज आपने कोल लोड किया है तो वहाँ से भी सफाई होनी चाहिए। guardrail, chain, stanchions to be placed around openings for the safety. अब ये भी चीज़ है सेफ्टी की। नाउ जैसे जैसे अब रूल पढ़ोगे, अब तक तो आपको थोड़ा बहुत तो आपने रूल्स पढ़े होंगे डॉक लेबर सेफ्टी के, इजंट इट, कि वर्कर्स की सेफ्टी, जो स्टीवर्ड्स आपके वहाँ पे आते हैं या शिप्स क्रू जो है कहीं पे भी काम कर रहा है, ही शुड बी प्रोटेक्टेड। तो ये नहीं कि आपने मैनुअल खोल दिया, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, हैच कवर खुला है, people can fall down cross decks पे if you are walking, so all these areas ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि यार ये जो एरिया यहाँ से कोई बंदा गिर सकता है, उसको मैं प्रॉपरली क्या कहते हैं, चाहे रोप्स लगाऊं चाहे रेलिंग लगाऊं। तो ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर लाइटिंग इन द होल्ड मस्ट बी चेक्ड। जनरल कार्गो शिप में किसी ने जाना है अंदर लाइट होनी चाहिए, तो ये भी प्रायर लोडिंग, यार ये सिस्टम काम करता है, नहीं तो बत्ती साहब जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है कि सर यहाँ पे बल्ब नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, वो भी हम चेक करेंगे। मीन्स ऑफ एक्सेस क्लियर, सेफ फ्रॉम एनी हैजर्ड्स। वो भी है चाहे आपका, ये नहीं कि उसको ब्लॉक ही करके रखा हुआ है, उसका लॉकिंग सिस्टम ही नहीं है। मूवी हैच कवर तो आपने खोल दिया, जब बंदा जाने लगा तो उसके सिर पे गिरा आके। अब सारी ये जो ड्यूटी ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ यार कार्गो वॉच पे आने से पहले जस्ट मेक श्योर, इसीलिए आप राउंड लगाते हो, दैट्स व्हाई यू गो ऑन राउंड्स एंड यू सी ऑल दीज थिंग्स। एंड सेम थिंग आपने एग्जाम में लिखनी है कि हाउ डू आई प्रिपेयर द होल्ड्स। मोस्ट ऑफ द कार्गोज के लिए ऑलमोस्ट ऑल दीज थिंग्स आर चेक्ड। थोड़ी बहुत डिग्री वेरी करेगी बट मोस्टली यू विल see all these things. Ballast lines to deep tanks, ballast holds blanked if cargo to be loaded in these holds. तो ये भी है कि yes, sometime bulk carriers पे one of the hold is again given for heavy weather ballast. उसके में manuals होते हैं, DB के manuals भी होते हैं. So one of you pointed out that also, very good. तो कैसे चेक करेंगे कि ये जो manuals हैं ठीक है, लीकेज नहीं है? सर जब बैलेस्ट कंडीशन में होगा तो अंडर प्रेशर होगा, तो डीबी में से लीकेज नहीं होनी चाहिए, उसकी रबर पैकिंग सही होगी तो नहीं होगी लीकेज। या तो ये है कि एज्यूम नहीं करना, दैट्स ऑफ कोर्स नॉर्मली चीफ ऑफिसर विल ट्राई आउट, बट आपको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए लोडिंग से पहले कि इसके अंदर जो मैनुअल है, सो बेसिकली उसकी टेस्टिंग है कि आप उस टैंक को भरिए और थोड़ा सा प्रेसअप कर दीजिए, थोड़ा सा फुल पूरा भर दीजिए। ये तो है नहीं कि पानी जो है मैनुअल को टच ही नहीं कर रहा, आप कह रहे जी मैनुअल तो होल्ड तो फुल है, आई मीन टैंक तो फुल है। समटाइम जहाज में ट्रिम होती है, फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द टैंक इज स्लाइटली एम्प्टी, फॉरवर्ड मैनुअल है उसको होता पानी टच ही ना करे, तो यू मे थिंक दैट इट इज नॉट
तो उसको हम थोड़ा सा टैंक को ज़्यादा भरते हैं, isn't it? So we make sure the tank is full and it is called pressed up. थोड़ा प्रेशर देंगे उसको, तब नॉट ओनली पंप के साथ, ग्रेविटी के साथ अप टू द ड्राफ्ट लेवल अगर आपने उसमें पानी भर दिया, दैट मीन्स पानी का लेवल ऊपर है, so your manual will be under pressure and अगर वो लीकेज होती है I can rectify, डीबलास्ट किया, उसको टाइट कर लिया। कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे बल्क कैरियर्स में कि बैलास्ट मैनुअल वाज लीकिंग, कार्गो डैमेज हो गई। एक बार कार्गो आ गया उसके बाद आपने अगर बैलास्टिंग डीबलास्टिंग की है, कैनॉट डू एनीथिंग। Cargo gear must be thoroughly checked to be in good working condition. अब अगर कार्गो गियर है, of course it is not entirely your responsibility, but आपने आंसर में लिखने के लिए कि सर of course I will check the cargo gear, it is in good working condition. सारे सेफ्टी कटआउट सब कुछ जो है काम कर रहा है, वायर एवरीथिंग इज वर्किंग एंड क्रेन्स आर इन गुड कंडीशन बिकॉज somebody else is going to work. अगर उसको बेचारे को कुछ हो जाता है, वो गिर जाता है, लग जाती है, शिप हैज टू पे द फाइन, शिप हैज टू पे टू हिम। तो शिप ओनर को पे करना पड़ेगा, तो फिर हमारे ऊपर बात आ जाएगी, यार शिप्स ऑफिसर क्या कर रहे थे, क्यों नहीं चेक किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कार्गो गियर प्लस वर्किंग डिले नहीं होना चाहिए। तो लॉट ऑफ शिप्स टुडे देयर इज नो कार्गो गियर, बट जिन शिप्स पे कार्गो गियर है, छोटे वाले हैं जो हैं, फीडर शिप्स हैं या बल्क कैरियर हैंडी साइज के रेंज हैं, कुछ भी है, तो बिफोर इवन आई कम ऑन डेक, बिफोर आई कम ऑन वॉच, सो आई शुड नो, हाँ यार सब रेंज ठीक है ना, किसी में प्रॉब्लम तो नहीं है, नोबडी कैन फॉल डाउन। ये चीज़ें सारी अगेन चेक करने वाली है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट योर बिल्जिस, या आपकी जो बिल्जिस हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द स्ट्रम बॉक्स और रोज बॉक्स, बेसिकली ये फिल्टर है। तो ये आपके पीछे दो कोनों में, इफ यू कैन सी हियर इन दिस, दैट ये आपका कार्गो होल्ड है एंड यहाँ पे आपकी आफ्ट एंड में बिल्जिस होंगी। नॉर्मली कंटेनर्स में आफ्ट में भी होती हैं, फॉरवर्ड में भी होती हैं, बट बल्क कैरियर्स यू विल फाइंड ओनली इन द आफ्ट कॉर्नर्स पे ये बिल्जिस हैं। एनी वाटर एक्यूमुलेट्स इट गोज डाउन थ्रू दिस, इसमें से इस लाइक ये भी फिल्टर है एंड ये आपका बिल्ज वेल है नीचे में, उनमें इकट्ठा होगा अंदर, ये आपका पाइपिंग सिस्टम है। दिस इज अगेन अ नॉन रिटर्न वॉल, यहाँ से सक्शन लेगा एंड इट इज गोइंग टू द इंजन रूम। तो ये चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बाई चांस कल को होल्ड में पानी आता है, चाहे मॉइस्चर से किसी भी चीज़ से, इट विल ट्रिकल डाउन टू द बिल्जिस, वेल में आ जाएगा। एंड अगर मैंने ये एरिया साफ नहीं किया, सपोज यहाँ पे सब ऑल मड एंड ऑल दैट थिंग्स आर कलेक्टेड, कार्गो कलेक्ट हुआ है, प्रीवियस कार्गो कोल था या कुछ भी है, उसका पाउडर एंड ऑल दैट जाके वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, हाउ कैन यू चेक, सक्शन ही नहीं लेगा। तो ये लोडिंग से पहले, ऑफ कोर्स टुडे ऑल द शिप्स, दीज कंपनीज आर वेरी मच कंसर्न, ये बिल्जी जो हैं इनकी सक्शन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसको टेस्ट करने का मेथड भी सिंपल है, आप इसको भर दीजिए पानी से, इजंट इट, विथ फायर होज या कहीं से भी आप इसको भर सकते हो ऊपर से, एंड देन ट्राई आउट द सक्शन। ये नहीं कि आपने होल्ड वॉशिंग शुरू कर दी, पानी होल्ड में भर गया एंड देन यू से कि सर पानी जाता नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। अब ये पूरा का पूरा वेल है, ऑलमोस्ट अबाउट 60-70 सेंटीमीटर ये होता है, 1-2 फीट हाई होगा, उसके अंदर अगर पानी भरा है यू कैन नॉट गो। तो इसको बिफोर यू डू एनीथिंग, तो ये चीज़ सफाई है, जो वही पॉइंट हमने लिखा है, द बिल्जिस मस्ट बी थॉरोली क्लीन। सो सबसे पहले अंदर हम इसकी साफ सफाई करके एंड देन वी हैव एन इंस्पेक्शन एंड देन यू वांट टू ट्राई आउट, देन फिल अप विथ वाटर। ये नहीं है कि सफाई की नहीं और पानी भर दिया एंड देन आप ना तो अंदर जा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो दिस इज अगेन योर बिल्जिस का सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज द डनेज, कि आपने इतना अगर प्रिपेयर कर लिया है, होल्ड क्लीनिंग कर ली है, ये बिल्ज अंदर से सफाई कर दी, सक्शन ट्राई आउट कर दिया, फिर ये बिल्ज कवर्स को आपने बंद कर दिया, नाउ योर होल्ड इज रेडी। अब इसके ऊपर आप जनरल कार्गो लोड करो, बल्क लोड करो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी होगा, एनी वाटर एनीवेयर फ्रॉम एनी सोर्स द वाटर कम्स, आई कैन पंप आउट। अब ये आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ योर डनेज। यार ये डनेज क्या चीज़ है? नो एनीबडी नोज व्हाट इज डनेज? Any example? Even tankers
पीपल कोई ऐसा नहीं है कि जनरल कार्गो में। डनेज से आप क्या समझते हैं? डनेज इज बेसिकली यूज टू प्रोवाइड अ protective buffer between the steel cargoes, vessels, tank tops, bulkheads or other cargoes for the purpose of protecting against the moisture damage. कोई एग्जांपल बता सकते हो अदर देन द कार्गो, कहाँ पे डनेज यूज करते हैं हम? सर स्टील स्लैब, स्टील कॉइल्स। हाँ, ये तो कार्गो के साथ होगी। एनीथिंग एल्स, एनीवेयर एल्स? सर टैंक टॉप पे स्ट्रेस ज्यादा ना इक्वलाइज करने के लिए। ओके, और कोई एग्जांपल जिन्होंने टैंकर्स किए हैं, कहाँ पे आपने डनेज यूज की शिप में, कहीं की थी? देखिए आप लूब ऑयल ड्रम्स रिसीव करते हो, नहीं कोई स्पेयर पार्ट्स रिसीव करते हो? सर मेन डेक पे जितने लूब वॉल ड्रम्स वगैरह रखते हैं हम सारे उसके लिए डनेज यूज करते हैं। करते हैं ना, देखो उसको भी हम रिसीव रोप, बेसिकली रोप जो रखते हैं रोप के लिए भी यूज करते हैं। यस, हर चीज के लिए आप नीचे एक वुडन प्लैंक या जिसे कहते हैं वो डाल देते हो या पैलेट डाल देते हो। उसका पर्पस क्या है? सर ताकि वो जो एक तो हम ड्रम रखते हैं तो जो हमारी शिप की डैमेज ना हो, कोरोगेटेड ना हो, और जो हमारा रोप है तो वो डैमेज ना हो बिकॉज ऑफ सी वाटर, और जो भी उसके कोरोगेटेड हो जाते हैं बेस तो उसके वजह से वो डैमेज ना आए किसी भी। देखिए वेरी सिंपल, आप डनेज को पूरा डनेज का जो एक सम का जो आइडिया वो समझ जाओगे कि आपने लूब ऑयल ड्रम रिसीव करते हो। अगर आप ड्रम को सीधा डेक पे रख देते हो, अभी डेक पे तो पानी भी आएगा, सी वाटर भी आएगा, स्प्रे भी आएगा, इजंट इट? अब वो सी वाटर जो आएगा वो ड्रम का नीचे का स्टील है उसको कोरोड करना शुरू कर देगा। कोरोजन विल टेक प्लेस ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द स्टील ड्रम जिसके अंदर लूब ऑयल है, और 1 महीने के बाद आपको पता लगेगा द ऑयल स्टार्ट्स लीकिंग। इसलिए 1 सेकेंड अगर आपने ड्रम को स्टील डेक के ऊपर रख दिया है तो लैशिंग बिकम्स डिफिकल्ट। आप कितना भी वायर को टाइट कर लो, वो ड्रम जो है स्टील टू स्टील कांटेक्ट होगा तो वो हिलेगा। शिफ्टिंग में हो जाता है सर, मतलब इजंट इट? शिफ्ट होगा, चाहता है। यस। तो डनेज का जो भी आप वुडन प्लैंक रखते हो जिसे हम डनेज कहते हैं, जब आप डनेज के ऊपर रखते हो सो द डनेज इज क्रिएटिंग एक्स्ट्रा फ्रिक्शन। आपको सिक्योरिंग जो है वो आसान हो जाती है। अगर आपने पतली पतली नीचे जो वुडन प्लैंक्स रखे हैं उसके ऊपर ड्रम रखते हो एंड बीच में गैप रखते हो, अगर पानी भी डेक पे आता है, चाहे रेन वाटर आता है चाहे स्प्रे वाटर आता है, वो पानी वो नीचे से निकल जाएगा। सिंपल यूजेस ऑफ डनेज। सेम थिंग वी यूज फॉर द कार्गो कि यार मैंने होल्ड में अगर कार्गो लोड करना है, डायरेक्ट होल्ड में कार्गो लोड करना है, चाहे स्टील प्लेट्स हैं, स्टील पाइप्स हैं, तो अगर मैं नीचे डनेज रख देता हूँ बेसिकली लाइक दिस, तो अब क्या होगा? अगर बाई चांस पानी आता भी है, ये आपके साइड बैटन्स हैं, ये शिप साइड है, शिप साइड पे भी ये थोड़ी सी मोटी लकड़ी होती है, यहाँ पे हुक्स लगी हुई हैं, ये इनके अंदर इनको दीज आर पोर्टेबल, आप इसको लगा सकते हो, निकाल भी सकते हो। सेम वे इनको भी लगा सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये एक रॉ बड़ी सस्ती सी चीप वुड होती है, उसको आप बिछा देते हो, उसके ऊपर कार्गो। अब आपके जो कार्गो लोड करोगे वो स्टील के कांटेक्ट में नहीं आएगा, अगर पानी आता है वो इसके नीचे से निकल के पीछे बिल्जिस में आ जाएगा। देखो कितने यूज आ गए। अभी आपने वेरी नाइसली अंडरस्टूड कि डेक पे अगर हम यूज करते हैं तो हमें ड्रम सिक्योर करने कितने आसान हो जाते हैं। वो ड्रम्स मूव नहीं करेंगे, आप उसको कीजिए चाहे कितना भी शिप रोल करे। प्लस प्रोटेक्शन होगी, प्लस आपकी डेक की प्रोटेक्शन होगी, डेक में भी कोरोजन नहीं होगा क्योंकि सॉल्ट वाटर वहाँ पे स्टैग्नेट नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। Isn't it? So this is what basically the dunnage. So after आपने सारा कुछ क्लीनिंग कर लिया, so अगर जनरल कार्गो है, not on bulk carriers we don't put this dunnage because तो बल्क कार्गो लोड करें। जनरल कार्गो में स्टील पाइप, स्टील प्लेट्स, बॉक्सेस, क्रेट्स कुछ भी लोड करना है, बैग्ड कार्गो सपोज, देन हम ये सिंगल डनेज लगा सकते हैं या डबल डनेज लगा सकते हैं, अथॉट शिप भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स आपकी बिल्जिस किस तरफ है। एंड ये आपकी जिसे कहते हैं साइड बैटन्स। तो ये साइड बैटन है कि कल को मैंने बैग्ड कार्गो लोड करना है ताकि मेरा बैग जो है शिप साइड प्लेट को ना टच करें। नहीं तो वेंटिलेशन नहीं होगी तो ना तो हवा पास कर सकती है, मॉइस्चर से वो बैग सारे डैमेज हो जाएंगे। तो उसको हम थोड़ा दूर रखते हैं 2-4 इंचेस
शिप साइड से ये उसको रोक के रखेगा। डबल डनेज भी लगा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल डनेज। कहीं कार्गो हैं, सेंसिटिव हैं, उनको थोड़ा और ऊंचा करना है, जैसे आपका डेक में है, पैलेट देखो कितना ऊंचा कर देते हैं, तो पैलेट की बजाय नीचे रास्ता भी होना चाहिए पानी के लिए, एंड प्लस कार्गो जो है एक सेफ कंडीशन से, प्लस एडिशनल फ्रिक्शन, कार्गो इस पे स्लाइड नहीं करेगा, सिक्योरिंग जो है आसान हो जाएगी। सो वन वे ऑफ सिक्योरिंग ऑल्सो। चलो ठीक है, यहाँ तक एनी डाउट्स? आई होप ऑल क्लियर। Yes, sir. Yes, all clear. चलो गुड। सो वी टेक 15 मिनट्स ब्रेक। ओके, चाय पी लीजिए। Sure. थैंक यू सर। Thank you, 12:45 sir. Thank you. 12:45 वी विल मीट। सो प्लीज टैंकर वाले जिन्होंने नहीं देखा, कुछ नहीं समझ आता, प्लीज स्टॉप मी। ओके, ये सारी ये समझ नहीं आया, डोंट हेजिटेट, वी आर ऑल सेम, वी आर ऑल वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। तो प्लीज डो नॉट हेजिटेट, एंड कहीं पे भी कुछ नहीं समझ आता, जो चीज़ नहीं देखी है प्लीज रेज अ क्वेश्चन, पूछिए, सर जरा रोक दीजिए। चलो हैव अ कप ऑफ टी, 12:45 वी मीट।